Hello students, last lecture we start the first unit, first bit of your pathophysiology is your cell injury. Okay, just flashback what we was study in last lecture. First of all, what is the meaning of cell injury? Cell injury is a simply defined as the variety of stresses a cell encountering as a result it itself, particularly physically and environmentally itself change it, that is called as a cell injury. The various etiology of your cell injury, okay, we was already discussing in that the number of etiology because of it to occurring a cell injury. There are the broadly classified into the two types. First one is your the genetic cause and second one is your acquired cause. Okay, cell injury is a mainly occurring in that the hypoxia or ischemia. What is the mean of hypoxia? Hypoxia means simply the low oxygen carrying capacity of blood, it's called as a hypoxia. And ischemia means what? The particularly reduction of your transfer of your blood, oxygenated blood toward the organ के पास प्रॉपर मैनर में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच नहीं पाता, इट्स कंडीशन इज कॉल्ड एज इस्चेमिया. फिजिकल एजेंट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, like is your the trauma, electrical shock, heat, cold is also responsible for the cell injury. Chemical agent like is your poisoning substances, lead, alcohols, then particularly also the some acids and alkali is also major causes to the occurring a cell injury. Next in that the particularly microbial agent like is your the bacteria, fungi, protozoa. Okay, this is also cause particularly cell injury or abnormality of your body. Nutritional derangement, aging, psychological factor, idiosyncrasy, lots of factor we was discussing already. Okay, last lecture we also discussing in that the adaptation of your cell means cell adaptation. Okay, what is the meaning of cell adaptation? Means simply to seek to survive exposure of stress, the cell itself make to adjust with a change in their the environment or the physical needed. If the repetitively exposure of your causative agent, whatever to do the cell itself making adjustment by the physically as well as the environmentally, that is called as a cell adaptation. We was discussing in that the 5 main principle of cell adaptation. First one is your the atrophy, second one is your the hypertrophy, third one is your the hyperplasia, fourth one is your the metaplasia, and fifth one is your the dysplasia. Okay, what is the mean of atrophy? In atrophy particularly decrease the size of parenchymal cell than normal cell. Okay, to compare the atrophy means what? Decrease the size of your parenchymal cell, it's called as atrophy. It's called as atrophy. And hypertrophy means simply the increase the size of parenchymal cell. Increase the size of your parenchymal cell and result is the enlargement of your organ or tissue without increasing number of your parenchymal cell, only increasing the size, not a number in case of hypertrophy. Third one is your the hyperplasia. Hyperplasia means the increase the number of parenchymal cell, not a size. Increase the number of parenchymal cell and resulting is the enlargement of your tissue and organ. Fourth one था हमारा metaplasia. Metaplasia means at a time of pressure. Okay, at a time of pressure on your cell, what happen in there? Particularly the cell means one adult epithelial cell is converted into the another adult type of epithelial cell. Okay, after the particularly releasing of your pressure, they become a converted to its normal shape. That is your the metaplasia. And dysplasia is your the cellular disorder. Dysplasia is your cellular order, the change which increase the number layer of your epithelial cell. Number layer of epithelial cell. Okay, अब आपको पता चल गया कि सेल इंजुरी क्या है, उसके कॉजेटिव एजेंट क्या है, कैसे होता है. हाइपोक्सिया और इस्चेमिया की वजह से हार्डली पर्टिकुलरली सेल इंजुरी हो रही है. अब ये सेल इंजुरी कैसे ऑकर होती है? मीन्स इट्स अ पैथोजेनेसिस. व्हाट इज अ मैकेनिज्म बिहाइंड इट? How to cell injury is a form there. Okay, today we will start the new topic in that the pathogenesis of cellular injury. Pathogenesis of cell injury. Okay,
द इस्चेमिया एंड हाइपोक्सिया आर कॉमनली कॉज ऑफ सेल इंजुरी. डेफिनेटली ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो लॉट्स ऑफ प्रोसेस आपकी कोलैप्स हो जाएंगी. रेस्पायरेशन नहीं होगा तो एटीपी जनरेशन नहीं होगा, एनर्जी जनरेशन नहीं होगा तो एक भी साइकिल आपकी कैरी नहीं होंगी, ओके. दिस इज अ hence the particularly ischemia and hypoxia are the main causative agent of cell injury. The underlying intracellular process and a mechanism involving in reversibly and irreversibly cell injury by hypoxia और ischemia. ऐसा नहीं है कि सेल इंजुरी हुई यानी सेल डेथ हो जाती है. इट्स अ बोथ टाइप, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, दोनों फेनोमेनॉन से सेल इंजुरी के. ओके, रिवर्सिबल यानी क्या, सेल इंजर्ड होने के बाद फिर से रिकवर होके हीलिंग होके, सेल का हीलिंग होके पर्टिकुलरली वो फिर से नॉर्मली कन्वर्ट हो जाता है. इट्स अ रिवर्सिबल. और इरिवर्सिबल यानी क्या, डायरेक्टली सेल इंजर्ड होने के बाद डेथ हो जाती है, दैट इज अ इरिवर्सिबल. ओके, दो मैकेनिज्म है, दो पैथोजेनेसिस है सेल इंजुरी के. फर्स्ट वन इज योर द रिवर्सिबल सेल इंजुरी एंड सेकंड वन इज योर इरिवर्सिबल सेल इंजुरी. रिवर्सिबल यानी क्या, सेल इंजर्ड हो रहा है, सेल का हीलिंग होके वो फिर से नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाता है. जैसे ह्यूमन बीइंग को यदि फीवर आया तो फीवर आने के बाद क्या करता है कि वो हीलिंग हो जाता है, टैबलेट लेने के बाद वो फिर से नॉर्मली बिहेव करने लग जाता है, दैट इज योर रिवर्सिबल. इरिवर्सिबल यानी क्या, पर्टिकुलरली जस्ट कंसिडर कि कैंसर पेशेंट है, कैंसर पेशेंट के जो पर्टिकुलरली जो सेल्स है वो डेथ होने के बाद ही क्लियर होते हैं, दैट यूज द इरिवर्सिबल सेल इंजुरी. मीन्स ये सी सेल इंजुरी है, वो सेल इंजर्ड होने के बाद सेल डेथ हो जाती है, दैट इज यूर द इरिवर्सिबल सेल इंजुरी. ओके, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, दोनों मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे और दोनों मैकेनिज्म के पर्टिकुलरली रीजंस क्या है वो भी डिस्कस करेंगे, मैकेनिज्म भी डिस्कस करेंगे, किस तरह से पर्टिकुलरली वर्किंग होता है. फर्स्ट वन इज योर द रिवर्सिबल सेल इंजुरी. रिवर्सिबल सेल इंजुरी. ओके, ये चार्ट इसलिए आपको निकाल के बताया है मैंने कि पर्टिकुलरली आपको इजीली अंडरस्टैंड हो कि रिवर्सिबल सेल इंजुरी कैसे ऑकर होती है, रिवर्सिबल सेल इंजुरी कैसे ऑकर होती है. ओके, यू वेरी वेल नोन अबाउट द सेल इंजुरी इज अ ऑकरिंग बिकॉज ऑफ योर द हाइपोक्सिया और इस्चेमिया. ओके, हाइपोक्सिया और इस्चेमिया की वजह से क्या होगा, डिक्रीज द एटीपी जनरेशन. ओके, डिक्रीज द एटीपी जनरेशन. जहां पे एटीपी जनरेशन डिक्रीज हो गया, आपको पता है कि दो वे से हमारा एटीपी जनरेशन होता है. एक एरोबिक साइकिल है, मीन्स इन्वॉल्विंग द ऑक्सीजन. ओके, एरोबिक यानी क्या, इन्वॉल्विंग द ऑक्सीजन टू फॉर्मेशन ऑफ योर एटीपी, इट्स योर द एरोबिक एनर्जी. अनएरोबिक यानी क्या, विदाउट अ ऑक्सीजन. ओके, विदाउट इन्वॉल्विंग ऑफ ऑक्सीजन फॉर्मेशन ऑफ योर ATP or energy, it is called as a glycolic pathway, energy glycolic pathway. ओके, हाइपोक्सिया इस्चेमिया यानी क्या, हाइपोक्सिया में क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन लेवल आपकी कम हो जा रही है. ओके, उसके वजह से क्या हो रहा है कि ATP फॉर्मेशन रिड्यूस हो जाएगा. हर एक प्रोसेस कैरी करने के लिए आपको ATP और एनर्जी रिक्वायर्ड है. यदि आपकी ऑक्सीजन की वजह से पर्टिकुलरली ATP जनरेशन नहीं हो रही तो आप क्या करेंगे कि सेकंड वे की तरफ जाएंगे. जैसे आप सेकंड वे की तरफ जाते हो तो क्या होता है, पर्टिकुलरली इंट्रासेल्युलर पीएच बढ़ जाता है. अब इंट्रासेल्युलर पीएच कैसे बढ़ता है, ग्लाइकोलिक पाथवे के लिए जाओगे आप, तो ग्लाइकोलिक पाथवे जब कैरी होता है तो वहाँ पे लैक्टिक एसिड सिक्रीशन बढ़ जाता है. जैसे लैक्टिक एसिड लैक्टिक एसिड सिक्रीशन बढ़ जाता है. यदि सेल में लैक्टिक एसिड बढ़ गया तो पीएच क्या हो जाएगा, राइजिंग हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब एसिडिक पीएच हो जाएगा. और एसिडिक पीएच हो गया तो डेफिनेटली जो सेल है वो आपका पर्टिकुलरली डिसफंक्शन में कन्वर्जन हो जाएगा, मीन्स सेल इंजर्ड हो जाएगा. ओके, सेकंड थिंग, हाइपोक्सिया इस्चेमिया हो गया तो सबसे पहले क्या होगा, डिक्रीज इन एटीपी जनरेशन. यदि एटीपी डिक्रीज हो गया तो डैमेज द सोडियम पंप. ओके, सोडियम पोटेशियम पंप क्या होगा कि डैमेज हो जाएगा और उसके वजह से मेम्ब्रेन डैमेज होता है. मेम्ब्रेन कैसे डैमेज होता है मैं आपको बताता हूँ. सोडियम पंप का वर्क क्या है कि सोडियम को बाहर निकालना और पोटेशियम को इनसाइड लेना या कैल्शियम को इनसाइड लेना, दोनों प्रोसेस है कैरी करता है. ओके, सोडियम का पर्टिकुलरली एक्सचेंज करना सेल के इनसाइड और सेल के
आउटसाइड, वो मैं आपको बताऊंगा जब आपको कोजेस एक्सप्लेन करूंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से वो वर्किंग करता है। यदि मेम्ब्रेन डैमेज हो गया, यदि मेम्ब्रेन डैमेज हो गया तो पर्टिकुलरली अल्ट्रा स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली चेंज योर सेल, चेंज योर सेल। थर्ड पॉजिटिव एजेंट, थर्ड वे पर्टिकुलरली हाइपोक्सिया और इस्चेमिया की वजह से एटीपी तो आपकी क्या होंगी, लॉस होंगी, मीन्स डिग्रेडेशन होंगी और रिडक्शन होंगी। पर्टिकुलरली एटीपी जनरेशन रिड्यूस होने की वजह से प्रोटीन सिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगा। यदि प्रोटीन सिंथेसिस डिक्रीज हो गया, there is a definitely cell injury is a takes place there. Protein is your the very important biomolecule, it is the first preference biomolecule. दिस इज योर द रिवर्सिबल सेल इंजरी। ये आपको ये चार्ट भी अंडरस्टैंड होगा ना, तो आपको मैकेनिज्म इजीली अंडरस्टैंड होगी। सबसे पहले हाइपोक्सिया और इस्चेमिया की वजह से क्या हो रहा है कि एनर्जी डिक्रीज हो रही है। अब एनर्जी डिक्रीज हो गई तो आपके 3 रीजन है सेल इंजर्ड होने के। एक है डिक्रीज द इंट्रासेल्युलर पीएच, मीन्स पर्टिकुलरली इंट्रासेल्युलर पीएच क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, मतलब एसिडिक के तरफ कन्वर्जन हो जाएगा उसका। ओके, एसिडिक हो गया तो डेफिनेटली सेल आपकी इंजर्ड हो जाएंगी और डैमेज एज वेल एज डेथ भी हो सकती है। सेकंड वन, डैमेज द सोडियम पंप। सोडियम पंप क्या करेगा, विच हैविंग द पर्टिकुलरली एक्सचेंजिंग ऑफ योर सोडियम एंड पोटेशियम आयन, सोडियम एंड potassium ion. Third one is your the decrease the protein synthesis, decrease the protein synthesis. Because of these three, because of the three, the cell itself the structural and functional changes, and structural and functional changes means the abnormality of cell, and there is your the reversible cell injury is that takes place there. Reversible cell injuries that takes place there. We see one by one in that particularly what is that. Okay, reversible cell injury. If इस्चेमिया एंड हाइपोक्सिया इज ऑफ अ शॉर्ट ड्यूरेशन, रिवर्सिबल क्या है, रिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या है, इफ इस्चेमिया एंड हाइपोक्सिया इज अ शॉर्ट ड्यूरेशन। ओके, रिवर्सिबल यानी क्या, पर्टिकुलरली इंजर्ड होकर फिर से रिकवर हो जाना, मीन्स इट्स अ शॉर्ट पीरियड, मीन्स शॉर्ट पीरियड में हाइपोक्सिया और इस्चेमिया होगा इसलिए वो हाईली रिकवर हो जाता है। रिवर्सिबल में क्या है, इस्चेमिया हाइपोक्सिया इज अ शॉर्ट ड्यूरेशन, the effect are reversible on rapidly restoration of a circulation, rapid restoration of circulation. The example in your the coronary artery occlusion, coronary artery occlusion. Okay, now the sequence of the reversible cell injury as a follows. Okay, reversible injury किस किस के वजह से हो सकती है, there are the 4 main reasons. फर्स्ट वन इज योर द डिक्रीज जनरेशन ऑफ सेल्यूलर एटीपी। मैंने बताया ना लास्ट डायग्राम में, क्लियर बताया मैंने। सबसे पहला रीजन क्या है, डिक्रीज जनरेशन ऑफ सेल्यूलर एटीपी। सेकंड वन था, यदि एटीपी रिड्यूस हुआ तो 3 वे निकलते थे हमारे। सबसे पहला था रिड्यूस द इंट्रासेल्यूलर पीएच। नेक्स्ट था हमारा डैमेज टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सोडियम पंप, एंड थर्ड वन इज योर द रिड्यूस द प्रोटीन सिंथेसिस, रिड्यूस द प्रोटीन सिंथेसिस। ये जो चारों रीज़न है, ये चारों रीज़न हम देखेंगे कि किस तरह से पर्टिकुलरली वर्किंग होता है। ओके, आपको इतना तो पता है, एचएपी में पढ़ा है, बायोकेम में पढ़ोगे आप कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, इज अ जनरेशन ऑफ एटीपी, जनरेशन ऑफ एटीपी। ओके, ये चारों रीज़न को हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से पर्टिकुलर रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है। सबसे पहला है हमारा डिक्रीज द जनरेशन ऑफ सेल्यूलर एटीपी, decrease the generation of cellular ATP. ATP is essential required for a variety of cellular function such as membrane transport, protein synthesis and lipid synthesis. Okay, ATP is one of the essential part to conduct any chemical reaction or to convert any chemical reaction. Okay, and ATP is also required the variety of cellular functions such as a membrane transport, protein synthesis and your lipid synthesis particularly. Okay, then the ATP in human cell is derived from the 2 source. Okay, अब ATP कैसे जनरेट होती है ह्यूमन बॉडी में, which having a 2 source. Okay, first one is your the aerobic respiration. What is the mean of aerobic respiration? With involving of your oxygen, with involving of oxygen, the cell become a generation of your the energy or generation of your ATP. Okay, in mitochondria,
mitochondria, and secondly is your the anaerobic glycolytic pathway. एनएरोबिक ग्लाइकोलाइटिक पाथवे, ये दो वे से पर्टिकुलरली एटीपी क्या होता है कि जनरेशन होता है, फॉर्मेशन होता है पर्टिकुलरली. ओके, फर्स्ट वन आपका एरोबिक रेस्पिरेशन इन योर माइटोकॉन्ड्रिया. यू हर्ड अबाउट इट. माइटोकॉन्ड्रिया इज योर power housing of cell. Why? Because he has a generation of your ATPs. And second one is your the without involving of oxygen, they having a generation of your ATP on the basis of your the anaerobic glycolytic pathway. Anaerobic glycolytic pathway. The third one is your the ischemic and hypoxia both limit the supply of oxygen to the cell and thus causing decrease the generation of ATP. डिक्रीज द जनरेशन ऑफ एटीपी. इट्स अ क्लियर. यदि इस्चेमिया और हाइपोक्सिया में यदि ऑक्सीजन लेवल ही कम होंगी, ऑक्सीजन लेवल ही कम होंगी तो ऑक्सीजन नहीं कैरी होगा पर्टिकुलरली, तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी जनरेशन नहीं होगा, और एनर्जी जनरेशन नहीं कर पाया तो सेल ऑटोमेटिकली आपका इंजर्ड हो जाएगा बिकॉज ऑफ डिक्रीज द एटीपी जनरेशन. दैट इज द फर्स्ट रीजन. That is the first reason you understand very easily. Okay, आपको पता है ATP is a very essential the variate function of your cell, right? Second one ATP टू वे से जनरेट होती है. एक एरोबिक मीन्स ऑक्सीजन इन्वॉल्विंग देयर एंड अनएरोबिक मीन्स नॉन ऑक्सीजन इन्वॉल्विंग देयर. ओके, और इस्चेमिया हाइपोक्सिया में ऑक्सीजन सप्लाई इज वेरी लिमिटेड and because of it to causing the decrease the generation of ATP. ATP जनरेशन के लिए आपको ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है. यदि ऑक्सीजन नहीं मिलेगा पर्टिकुलरली तो आपका ऑटोमेटिकली ATP जनरेशन डिक्रीज हो जाएगा. दैट इज द फर्स्ट रीजन. ओके, सेकंड वन इज योर द रिड्यूस द इंट्रासेल्युलर pH. Reduce the intracellular pH. Okay, due to the low oxygen supply to the cell, means the hypoxia or ischemia. Okay, means ischemia की वजह से, due to the low oxygen supply to the cell, aerobic respiration by mitochondria fail first. Definitely आपने देखा ना लास्ट इसमें देखा ना, ऑक्सीजन यदि कम हो रहा है मीन्स हाइपोक्सिया और इस्चेमिया हो रहा है पर्टिकुलरली, तो जो रेस्पिरेशन जो पर्टिकुलरली एरोबिक रेस्पिरेशन है बाय माइटोकॉन्ड्रिया वो फेल होगा. यदि माइटोकॉन्ड्रिया यदि पर्टिकुलरली रेस्पिरेशन नहीं करेगा तो सेल्यूलर एटीपी जनरेशन नहीं कर पाएगा. तो वहाँ पे क्या हुआ कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया फेल हो गया. ओके, सेकंड कौन सा है आपका, सेकंड सोर्स क्या है एनर्जी का, किस तरह से जनरेट करते हैं. सेकंड वन इज योर दिस इज अ फॉलोड बाय द स्विच एनएरोबिक ग्लाइकोलिटिक पाथवे फॉर द एनर्जी रिक्वायरमेंट. ओके, दो आपके पाथवे एनर्जी रिक्वायरमेंट करने एनर्जी फॉर्मेशन करने के लिए, एक तो आपका फेल हो गया क्योंकि ऑक्सीजन आपका लो अमाउंट में सप्लाई हो रहा है सेल को, और वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, उसका रेस्पिरेशन रिक्वायर्ड है एटीपी जनरेशन के लिए. वहाँ पे ऑक्सीजन कैरी नहीं हो रहा है तो फर्स्ट आपका पाथवे फिनिश हो गया एटीपी जनरेशन का. अब सेकंड जो है सेकंड पाथवे अनएरोबिक ग्लाइकोलिटिक पाथवे फॉर द एनर्जी रिक्वायरमेंट. तो आप कहाँ पे जाओगे टू पर्टिकुलरली स्विच द सेकंड पाथवे. ओके, उसमें क्या होता है पर्टिकुलरली, दिस रिजल्ट इज अ रैपिडली डिप्लीशन ऑफ ग्लाइकोजन. ओके, ग्लाइकोलाइटिक यानी क्या, जो हमारे स्टोर फॉर्म में एनर्जी रहती है, कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया था तब भी बताया था मैंने कि जो शुगर मोइटी रहती है, जो कार्बोहाइड्रेट मोइटी रहती है, वो पर्टिकुलरली हम स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन में. तो इस सेकंड स्टेप में क्या होता है, जब एनर्जी जनरेशन होती है तो ग्लाइकोजन को क्या किया जाता है कि ब्रेक डाउन किया जाता है और उसका कन्वर्जन ग्लूकोज में किया जाता है. ओके, अब बिकॉज ऑफ द अनएरोबिक ग्लाइकोलिटिक पाथवे द रिजल्ट इज अ रैपिडली डिप्लीशन ऑफ ग्लाइकोजन. ग्लाइकोजन क्या हो रहा है कि रैपिडली डिप्लीश हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है, एंड द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड. ओके, लैक्टिक एसिड क्या हो रहा है कि सेल में एक्यूमुलेट हो जा रहा है. ग्लाइकोजन डिप्लीशन होने के वजह से पर्टिकुलरली लैक्टिक एसिड क्या हो रहा है, एक्यूमुलेशन हो जा रहा है. जो लैक्टिक एसिड को बाहर निकलना चाहिए सेल के, वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, वहाँ पे ही पर्टिकुलरली वो एक्यूमुलेशन हो जा रहा है. यदि एसिड आपके सेल में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, पीएच जो है उसका लोअर हो जाएगा. लोअर पीएच यानी क्या, एसिडिक के तरफ जाना. लोअर पीएच यानी क्या, एसिडिक के तरफ जाना. लोअरिंग द इंट्रासेल्युलर pH, and because of the lowering of intracellular pH resulting is the clumping of your the nuclear chromatin.
उसके वजह से क्या होगा, जो न्यूक्लियर है सेल का वो क्या हो जाएगा, क्लम्प हो जाएगा, क्लम्प हो जाएगा और आपकी सेल इंजुरी हो जाएंगी, और आपकी सेल इंजुरी हो जाएंगी. दिस इज अ सेकंड रीजन. ओके, यू क्लियर इन दैट? इट्स अ second is a basic part in that. Third one is your the damage to the plasma membrane sodium pump. Damage to the plasma membrane sodium pump. Okay, normally the energy dependent sodium pump operating at a plasma membrane. Okay, जो particularly आपका सोडियम पंप है वो कौन ऑपरेट करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑपरेट करता है. कौन ऑपरेट करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑपरेट करता है. सोडियम पंप का वर्किंग क्या है, एक्सचेंज ऑफ यूर द सोडियम मॉलिक्यूल्स. सोडियम एंड पोटेशियम मॉलिक्यूल को क्या करता है, एक्सचेंज करने का काम आपका सोडियम पंप करता है. और इसे कौन ऑपरेट करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, इसे ऑपरेट करता है. ओके, अलाउ टू एक्सचेंज सोडियम एंड पोटेशियम इनसाइड द सेल. इनसाइड द सेल सोडियम पंप का वर्किंग क्या है, सोडियम और पोटेशियम को पर्टिकुलरली एक्सचेंज करने का वर्क हमारा सोडियम पंप का है. और सोडियम पंप को कौन ऑपरेट कर रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका ऑपरेट कर रहा है. ओके, बिकॉज ऑफ लोअर द एटीपी इन द सेल and the consequently increase the ATPase activity, interference with the membrane regulating process and damage of plasma membrane. Damage of plasma membrane. लोअर एटीपी जनरेशन के वजह से पर्टिकुलरली एटीपेस की एक्टिविटी बढ़ जाती है. एटीपेस की एक्टिविटी बढ़ जाती है. एटीपेस क्या करता है, सोडियम पंप इनहिबिटर है. सोडियम पंप इनहिबिटर है. यदि वो सोडियम पंप की एक्टिविटी इनहिबिट करेगा तो डेफिनेटली आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी ब्रेक कर रहा है, वो डैमेज कर रहा है. यदि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका डैमेज हो गया, देयर इज योर द सेल इंजुरी इज टेक्स प्लेस देयर. दैट इज सिंपल वे. इट्स योर द थर्ड रीजन ऑफ योर द रिवर्सिबल सेल injury. The fourth one is your the reduce the protein synthesis. Reduce the protein synthesis. Definitely ये तो सबसे पहले होगा. As a result of continuous hypoxia, okay, as a result of continuous hypoxia, the ribosome are the detached to the granular endoplasmic reticulum and the polysomes and degradation of your the monosome, thus causing the reducing the protein synthesis. सबसे पहले ये बता दो कि प्रोटीन कौन सिंथेसिस करता है सेल में, इट्स योर राइबोसोम. इट्स योर राइबोसोम. और बिकॉज ऑफ हाइपोक्सिया राइबोसोम क्या हो रहा है कि वो अटैच हो जा रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को और डिटैचेबल फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो उसमें क्या हो जा रहा है कि जो पर्टिकुलरली मोनोसोम है, मोनोसोम क्या हो जा रहा है, डिग्रेड हो जा रहा है. यदि मोनोसोम डिग्रेड हो गया तो राइबोसोम भी आपका डिग्रेड हो जाएगा. राइबोसोम डिग्रेड होगा तो डेफिनेटली कि आपका प्रोटीन सिंथेसिस क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि राइबोसोम ही आपका प्रोटीन सिंथेसिस करता है. दिस इज यू आर द 4 रीजन टू ऑकरिंग अ सेल इंजुरी. होप यू अंडरस्टैंड. इट्स अ वेरी इजी. फर्स्ट है हमारा डिक्रीज द जनरेशन ऑफ एटीपी. सेकंड वन था हमारा रिड्यूस द इंट्रासेल्युलर पीएच. थर्ड वन था हमारा डैमेज टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सोडियम पंप. एंड फोर्थ वन इज योर द रिड्यूस द प्रोटीन सिंथेसिस. Reduce the protein synthesis. Okay, here is your finish the cellular cell pathogenesis of your cellular cell injury. Second part है हमारा pathogenesis of irreversible cell injury. Irreversible cell injury means the first one cell injured होता है, then the death is a takes place there. Death is a takes place there. Okay, irreversible cellular injury यानी क्या, it persistence of ischemia or hypoxia result in irreversible changes in a structure and function of the cell, means the cell death occurring there. Cell death occurring there. Okay, because of hypoxia and ischemia result is your the structural and functional totally damage, and that is your the cell death. Okay, that is the irreversible cell injury. The sequence of your irreversible cell injury is as follows. सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन. माइटोकॉन्ड्रिया यदि फंक्शन प्रॉपरली नहीं करेगा, आपने देखा कि एटीपी जनरेशन नहीं होंगी. एटीपी जनरेशन रिड्यूस हो गया तो आपको पता है कि सेल ऑटोमेटिकली इंजर्ड और डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा. सेकंड वन मेम्ब्रेन डैमेज. सेकंड वन इज योर मेम्ब्रेन डैमेज. आपने देखा सोडियम पोटेशियम पंप, वो क्या कौन वर्क करता था, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका क्या करता था, उसे ऑपरेट करता था. यदि आपका सोडियम पोटेशियम पंप यदि डैमेज हो रहा है तो डेफिनेटली मेम्ब्रेन डैमेजेस के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे.
Hydrolytic agent. Hydrolytic is your the enzyme. The lots of enzyme, protease, lipase. Okay, this is a help to the damaging of your the protein and lipid respectively. And fourth one is your the serum estimation of liberation of इंट्रासेल्युलर एंजाइम. ओके, रिवर्सिबल में हमने 4 रीजन देखे, तो अब इरिवर्सिबल में भी हमारे 4 रीजन है. बिकॉज ऑफ दिस 4 रीजन द इरिवर्सिबल सेल इंजुरी इज अ टेक्स प्लेस देयर. वी डिस्कस वन बाय वन. ओके, सबसे पहले मैं ये चार्ट डिस्कस करना चाहता हूँ कि व्हाट इज इन देयर, व्हाट इज इन देयर. ओके, अब सबसे पहला बिकॉज ऑफ इस्चेमिया और हाइपोक्सिया, ये चार्ट आपको अंडरस्टैंड हो गया तो आप इजीली सारा मैकेनिज्म राइट कर सकते हो. Because of ischemia or hypoxia, you very well known about the decrease the ATP generation. Okay, ATP generation decrease हो गया तो आपका particularly क्या होगा, जो मेम्ब्रेन में particularly एक्सचेंजिंग होता था कैल्शियम सोडियम पोटेशियम का, उसमें क्या होगा कि कैल्शियम हाइयर अमाउंट में इनसाइड पर्टिकुलरली सेल के इनसाइड एक्यूमुलेशन हो जाएगा, मीन्स इंक्रीज द सिस्टोसोलिक कैल्शियम. और उसके वजह से क्या होगा कि परफ्यूजन नहीं होगा. उसके वजह से क्या होगा, परफ्यूजन नहीं होगा. परफ्यूजन यानी क्या, वो पर्टिकुलरली आउटसाइड नहीं जाएगा सेल के. यदि कैल्शियम सेल के आउटसाइड नहीं जाएगा तो और कैल्शियम कहाँ आपका पर्टिकुलरली एक्यूमुलेट होगा, वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया में पर्टिकुलरली वो कैल्शियम डिपोजिशन हो जाएगा. कैल्शियम डिपोजिशन हो जाएगा. यदि सिस्टोलिक कैल्शियम इंक्रीज हो गया तो वहाँ पे ना पर्टिकुलरली क्या करेगा कि वो प्रोटोलाइटिक एक्टिविटी एनहांस कर देगा, हाइड्रोलाइटिक एक्टिविटी एनहांस कर देगा. तो वो क्या करेगा पर्टिकुलरली, वो क्या करेगा कि पर्टिकुलरली एंजाइम एक्टिवेशन कर देगा. कैल्शियम क्या करेगा, एंजाइम एक्टिवेशन कर देगा. फोस्फोलाइपेस एक्टिवेशन कर देगा. ये एंजाइम फोस्फोलाइपेस जो एंजाइम है वो फोस्फोलिपिड को ब्रेक डाउन करता है. और प्रोटेस एक्टिवेशन कर देगा. प्रोटेस एक्टिवेशन होगा तो प्रोटीन डैमेज का वर्क स्टार्ट कर देगा. प्रोटीन का पर्टिकुलरली क्या करेगा कि प्रोटीन डैमेज का वर्क स्टार्ट कर देगा. ये कैल्शियम यदि हाइयर अमाउंट में माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट रहा. यदि फोस्फोलाइपेस यदि एक्टिवेट हो गया तो वो क्या होगा कि जो फोस्फोलिपिड है मेम्ब्रेन में सबसे ज़्यादा रहता है फोस्फोलिपिड, इट्स 85% फोस्फोलिपिड इज देयर. तो वो क्या करेगा, फोस्फोलाइपेस पर्टिकुलरली आपका फोस्फोलिपिड को ब्रेक डाउन कर देगा. उसकी वजह से मेम्ब्रेन आपका लॉस हो जाएगा. अदरवाइज लिपिड ब्रेक डाउन करेगा, और जैसे लिपिड ब्रेक डाउन किया प्रोडक्ट मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगा. मेम्ब्रेन डैमेज होने के बाद लिबरेशन ऑफ योर द इंट्रासेल्युलर एंजाइम और सेल डेथ ओकर हो जाएगा. सेल डेथ यानी क्या, इट्स योर द माइलिन फिगर. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है, सेल डेथ इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ माइलिन फिगर. इट्स योर माइलिन फिगर. ओके, और न्यूक्लियर चेंजेस हो जाएंगे, पिक्नोसिस, कैरोलाइसिस एंड योर द कैनोएक्सिस, एज वेल एज द सीरम एंजाइम एस्टिमेशन हो जाएंगे, SGPT, LDL, LDH, वॉट एवर इट मे बी. ओके, दिस इज द फर्स्ट मैकेनिज्म. सेकंड वन, बिकॉज ऑफ द hypoxia, because of the hypoxia decrease the ATP generation and it will be the chances of decrease the synthesis of your the membrane of phospholipid. Okay, यदि फोस्फोलिपिड का मेम्ब्रेन सिंथेसिस कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो मेम्ब्रेन है वो फोस्फोलिपिड का क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा. और मेम्ब्रेन डैमेज हो गया तो सेल डेथ इज अ occur. Okay, third reason, because of hypoxia or ischemia decrease the generation of ATP, there is a help to the formation of toxic oxygen radical. Toxic oxygen radical like is your the oxygen, hydrogen peroxide and hydroxyl group, and they having a particularly lipid peroxidase DNA damages. Okay, DNA damages होगा तो सेल मेम्ब्रेन डैमेज, सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो डैमेज. और उसके बाद आपको पता है कि 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है, सेल डेथ हो जाएंगी, एज वेल एज न्यूक्लियर चेंजेस हो जाएंगे, एज वेल एज सीरम एंजाइम एस्टिमेशन हो जाएगा. दैट इज अ सिंपल वे. ओके, क्लियर हुआ ये मैकेनिज्म. इस्चेमिया और हाइपोक्सिया हुआ तो पर्टिकुलरली अंडरस्टैंड करना है कि आपको 3 पॉसिबिलिटी होंगी. एक, माइटोकॉन्ड्रिया में कैल्शियम इंक्रीज होगा. सेकंड वन, टॉक्सिक ऑक्सीजनेशन रेडिएशन इंक्रीज होगा, या पर्टिकुलरली डिक्रीज द मेम्ब्रेन फोस्फोलिपिड. ये मैकेनिज्म आपकी कैरी होंगी. ओके, हर होने के बाद क्या होगा, आपका डेफिनेटली मेम्ब्रेन डैमेज होगा. यदि मेम्ब्रेन डैमेज होता है तो सेल डेथ हो जाती है. मेम्ब्रेन आपके बॉडी, आपका जो
बॉडी है, बॉडी का मेम्ब्रेन क्या है? आपकी स्किन है, आपकी स्किन है, स्किन है तो फिर आप प्रॉपरली हो, अदरवाइज फिर यू ऑल्सो नॉट लाइव। ओके, वी सी वन बाय वन, जो फोर फंक्शन है वो हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहला है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया डिसफंक्शन। सबसे पहला है माइटोकॉन्ड्रिया डिसफंक्शन। ओके, ये किसके वजह से हो रहा है? मैंने आपको बताया माइटोकॉन्ड्रिया डिसफंक्शन किसके वजह से हो रहा है? कैल्शियम इनफ्लक्सेस हायर है, कैल्शियम एक्यूमुलेशन हायर है इन योर माइटोकॉन्ड्रिया, मैंने बताया ना। एंड बिकॉज ऑफ इट पर्टिकुलरली माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डिसफंक्शन। ओके, सी एज अ रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूड hypoxia a large systolic influx of calcium ion occur specially। क्या हो रहा है? बिकॉज ऑफ द लॉन्ग टाइम ऑफ हाइपोक्सिया, बिकॉज ऑफ लॉन्ग टाइम ऑफ हाइपोक्सिया द सिस्टोसोलिक इन्फ्लक्स ऑफ योर कैल्शियम आयन, सिस्टोसोलिक इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन हायर अमाउंट में पर्टिकुलरली सिस्टोसोलिक में प्रेजेंट है, ओकर स्पेशली आफ्टर द परफ्यूजन ऑफ इरिवर्सिबल सेल इंजरी। कब? स्पेशली फॉर द परफ्यूजन ऑफ योर इरिवर्सिबल सेल इंजुरी। ओके, अब वो कैल्शियम क्या करेगा? विच इज अ टेकन बाय द माइटोकॉन्ड्रिया, कैल्शियम क्या माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? उस कैल्शियम को टेक करेगा एंड द कॉज ऑफ योर द माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन। और कैल्शियम क्या करेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री करेगा और माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन है वो कोलैप्स कर देगा। दैट इज योर द फर्स्ट। यदि माइटोकॉन्ड्रिया डिसफंक्शन हो गया तो एटीपी जनरेशन नहीं होंगी, सेल डेथ होंगे, मेम्ब्रेन डैमेजेस होंगे, लॉट्स ऑफ थिंग ओपन हो जाएंगी। दिस इज द फर्स्ट रीजन माइटोकॉन्ड्रिया डिसफंक्शन, बिकॉज ऑफ द सिस्टोसोलिक इन्फ्लुएंसिंग ऑफ योर कैल्शियम आयन, द हायर अमाउंट ऑफ सिस्टोसोलिक इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन। Okay, this is your the first reason. The second one is your the membrane damage. Second one is your the membrane damage. Okay, वो डायग्राम आपको याद रहा तो आप इजीली पूरा मैकेनिज्म, पूरा पैथोजेनेसिस आप क्लियरली लिख सकते हो, इसलिए मैंने आपको पूरा वो प्रॉपरली एक्सप्लेन करके बताया दोनों मैकेनिज्म। सेकंड वन इज योर द मेम्ब्रेन डैमेज। मेम्ब्रेन डैमेज का तो आपको पता है कि आपने देखा चार्ट, उसमें कितने रीजन्स है मेम्ब्रेन डैमेज के। डिफेक्ट इन मेम्ब्रेन फंक्शन इन जनरल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन पर्टिकुलर इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इन अ इरिवर्सिबल सेल इंजुरी इन इस्चेमिया। डेफिनेटली मैंने बताया यदि कवर ही, प्रोटेक्टिव कवर ही वीक रहेगा, डैमेज हो जाएगा तो सेल आपका लिविंग कंडीशन में नहीं रहेगा, लिविंग कंडीशन में नहीं रहेगा। ह्यूमन बीइंग का जैसे हार्ट होता है ना, वैसे सेल का सेल वॉल और मेम्ब्रेन जो है वो उनका हार्ट होता है। वॉल और सेल मेम्ब्रेन आपका प्रॉपरली तो वो सेल प्रॉपरली। ओके, अब जो भी हम टैबलेट लेते हैं ना, तो टैबलेट का मैक्सिमम वर्क क्या रहता है? एक तो क्या करेगा, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डैमेज करेगा या पर्टिकुलरली डीएनए और आरएनए को डैमेज करेगा। ये दो ही वर्क रहते हैं जो भी ड्रग हम लेते हैं उसका। तो अब ये क्या कर रहा है, यदि पर्टिकुलरली मेम्ब्रेन फंक्शन यदि डिफेक्ट हो गया तो सबसे बड़ा अफेक्शन किसे होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को होगा। यदि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका डिफेक्ट हो गया तो इरिवर्सिबल सेल इंजुरी इज ऑकरिंग देयर, irreversible cell injuries occurring there. The mechanism underlying the membrane damage are as under acceleration, degradation of membrane phospholipid, okay, because of the activation of your the phospholipase activation of your the phospholipase enzyme on, because of is the phospholipase enzyme का क्या काम है? फोस्फोलिपिड को डैमेज करना। यदि फोस्फोलिपिड डैमेज हो गया सेल मेम्ब्रेन में और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपका पर्टिकुलरली 85% फोस्फोलिपिड ही रहता है। फोस्फोलिपिड डैमेज तो सेल इंजुरीज टेक्स प्लेस देयर। सेकंड वन इज योर द साइटोस्केलेटल डैमेज, साइटोस्केलेटल डैमेज, एंड थर्ड वन इज योर द ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड विद द एक्टिवेशन ऑफ योर द लाइपेस एंजाइम, एक्टिवेशन ऑफ योर लाइपेस एंजाइम पर्टिकुलरली उसके वजह से आपका मेम्ब्रेन डैमेज होता है। दैट इज अ सेकंड रीजन। The third one is your the hydrolytic enzyme. Third one is your the hydrolytic enzyme. The damage to the lysosomal membrane is followed by liberation of the hydrolytic enzyme. Okay, लाइसोसोम मेम्ब्रेन डैमेज होने के बाद क्या होता है कि लाइसोसोम क्या करता है कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को रिलीज करता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को क्या करता है? रिलीज करता है। लाइक इज योर द आरएनएस
and protease. RNA और protease, which on activation cause the digestion of your the cellular component. जैसे ही लाइसोसोमल आपके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सिक्रीशन करना स्टार्ट कर देगा पर्टिकुलरली, तो क्या होगा कि जो लाइसोसोम है, जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, वो क्या करेगा कि सेल्यूलर जो कंपोनेंट है उसे ही डाइजेशन करने का काम कर देगा and induce the nuclear changes and hence the cell death is occurring there. Hence the particularly mitochondria is called as a powerhouse of cell and lysosome is called as a death of your cell because of the hydrolytic enzyme is generating in there. Okay, this is your the third reason, and last is your the serum estimation of liberation intracellular enzyme. Serum estimation of liberation of intracellular enzyme. Okay, liberation enzyme just mention leak across the abnormally permeable cell membrane into the serum, and the estimation of which may be used to the clinical parameter of सेल. जो पर्टिकुलरली इंट्रासेल्यूलर एंजाइम से जो लिबरेशन होता है, लाइक इज योर SGPT, SGOT, ये क्या करते हैं, LDL, ये क्या करते हैं कि सीरम एस्टिमेशन के लिए पर्टिकुलरली यूज होते हैं. ओके, दिस इज योर द 4 मेन रीजन टू अकरिंग द इरिवर्सिबल सेल इंजुरी. ओके, टुडे we have to completed pathogenesis of your cell injury in both way. particularly दोनों वे से हमने देखा. सबसे पहले देखा हमने रिवर्सिबल में हमने 4 रीजंस देखे बिकॉज ऑफ इट पर्टिकुलरली दे हैविंग occurring. फर्स्ट वन इज द डिक्रीज द जनरेशन ऑफ सेल्युलर ATP. सेकंड वन रिड्यूस द इंट्रासेल्युलर pH. थर्ड वन इज योर डैमेज टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सोडियम पंप. एंड फोर्थ वन इज योर द रिड्यूस प्रोटीन सिंथेसिस. उसके बाद हमने देखा कि इरिवर्सिबल सेल इंजुरी, उसमें भी हमने पर्टिकुलरली 4 रीजंस देखे. माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन, मेम्ब्रेन डैमेज, हाइड्रोलाइटिक एजेंट एंड योर सीरम एस्टिमेशन ऑफ लिबरेटेड इंट्रासेल्युलर एंजाइम. ये हमने 4th रीजन देखे. हियर इज अवर पैथोजेनेसिस इज फिनिश. द लास्ट एंड इस टॉपिक में हमारा लास्ट पॉइंट जो बचा है वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजुरी. मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजुरी. ओके, वो हम वी विल रिज्यूम नेक्स्ट लेक्चर. ओके स्टूडेंट, थैंक यू.